டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை காணலாம். 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। 2 முறை 3-4 முறை மக்களுக்கு பங்கு வர்த்தகம் அதிக அளவில் விற்பனையாக போகிறது என்று சொல்லப்பட்டது. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார், ஜூன் 4ஆம் தேதி அன்று பங்கு வர்த்தகம் மிக அதிக உயரத்திற்கு செல்லும், எனவே முதலீடு செய்வதற்கான நேரம் இது என்று சொன்னார். स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th, फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। பிரதமர் மோடி அவர்கள் இதே கருத்தை தெரிவித்தார். ஜூன் 1ஆம் தேதி ஊடகங்கள் தங்களுடைய எக்ஸிட் போல் என்கின்ற அதன் மூலம் பிஜேபி பெரிய வெற்றியை பெறவிருக்கிறது என்று நாடு முழுவதும் செய்தி பரப்பின. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून 3ஆம் தேதி ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லா சாதனை அளவுகளையும் உடைத்தெறிந்து முன்னேறியது. अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? 31 மே மாதம் 31ஆம் தேதி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நடந்த விவரங்களை பாருங்கள். 28ஆம் தேதி 29ஆம் தேதியில் நடந்த மார்க்கெட்டிங்கை விட 2 மடங்கு 31ஆம் தேதி நடந்தது. और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल। ஆனால் உண்மையான முடிவு வெளிவந்த போது 30 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்டது. हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। இது பாரதத்தின் பங்கு வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான மிகப்பெரிய ஊழல். पहला सवाल, why did PMNHM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job? என்னுடைய முதல் கேள்வி, பாரத பிரதமரும் நிதியமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சரும் தவறான தகவல்களை ஏன் அளித்தார்கள்? Owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market. Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore? எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு ஒரு நாள் முன்பாக வெளிநாட்டு சந்தையிலிருந்து ஏராளமான முதலீடுகள் பங்கு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டது. இதை முதலீடு செய்தவர்கள் யார்? அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் ஏற்பட்டது. At the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்திய பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுகின்ற சாமானிய மக்களின் பணம் அவர்கள் கைக்கு போய்விட்டது. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate. இன்று நாங்கள் ஒரு हिंदी में बोल देता हूं, கூட்டு பாராளுமன்ற குழு இதனை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கிறோம். इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 கரோड़ நாட்டு மக்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கான ஆலோசனையை ஏன் வழங்கினார்? स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा,
பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சரும் பங்குகளை வாங்குங்கள் என்ற ஆலோசனை ஏன் வழங்கினார்கள்? अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस இந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் அதானி அவர்களின் தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் மூலமாக ஒளிபரப்பப்பட்டன. फेक एग्जिट இதனை पोस्टर्स हैं और ये जो பங்குச்சந்தை விசாரிக்க வேண்டும். बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और கூட்டு देश। பாராளுமன்ற குழு விசாரணையை நாங்கள் கேட்கிறோம். धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। நன்றி. साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं, जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इसके शेयर उसके बाद भी बीच में बेचे भी गए, उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए। आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने இங்கே डायरेक्टली ஒரு कहा ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்பதுதான் எங்களுடைய பார்வை. कि स्टॉक, பிரதமர் நேரடியாக இதனை சொல்லியிருக்கிறார். होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और உள்துறை அமைச்சர் நீங்கள் பங்குகளை வாங்க வேண்டும் என்று तो उसका பரிந்துரை செய்திருக்கிறார். करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है। ये भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो ये हम पता लगाना चाहते हैं। उसमें உள்துறை आपके एरर भी शामिल है। ஏஜென்சிகள் மூலமாக இவர்களுக்கு 220 250 இடங்கள் மட்டுமே பாராளுமன்றத்தில் கிடைக்கும் என்பது முன்னரே தெரியும். पहले भी आप இருந்தாலும் இவர்கள் ஏன் இவ்வாறு பரிந்துரை செய்தார்கள்? पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है ये। नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड अगर नहीं मांगते तो पुलिस में, कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। इसी கூட்டு विषय பாராளுமன்ற குழு விசாரணையை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஏன் காவல்துறை மூலமாகவோ அல்லது நீதிமன்ற வழக்கு மூலமாக எடுத்துத் தரவில்லை என்று நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நாங்கள் செய்வோம். இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் இதனை மேலெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி பதிலளித்தார். जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको दे टीचर दूंगा, देने की जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है? हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया இந்த है, यहाँ पे விஷயத்தில் फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट தெளிவாக ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கிறது. மக்களை பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யும்படி பிரதமர் நேரடியாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जयेंद्र,
राहुल जी, जेपीसी की बात जो आपने की है वो तो पार्लियामेंट सेशन में होगी, लेकिन ये जो आम निवेशक हैं देश भर के जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे। तीनों राज्यों में आपकी सरकार है, क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से कोई कार्रवाई की उम्मीद सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। हाँ, रंजीत मोहित रंजीत यार आप मोहित चलो आपको ऐसे सर मैं सर मैं मोहित आपने समझ कर लिया, पूछ लीजिए सर मैं मोहित हूँ, न्यूज नेशन से। नहीं जानता हूँ सर, लगातार पिछली घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले हैं? अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है, तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी, ये आखिरी है क्या और दो लेंगे? ये आखिरी है, आखिरी हो गया, इन्होंने कह दिया आखिरी। ओके रंजीता। राहुल जी, आज आप बातें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये घोटाला है, क्या जिन उद्योगपतियों का नाम आप हमेशा लेते रहे हैं, चुनावी जो रैलियां रही हैं उसमें भी और उसके बाद भी, क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने मदद की है उन उद्योगपतियों को और अमीर बनाने में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, வருமானம் आपने उन पर भरोसा किया। வீணாக போயிருக்கிறது. நீங்கள் சம்பாதித்த பணம் வீணாக போயிருக்கிறது. அமித்ஷாவும் பிரதமர் மோடி அவர்களும் உங்களை பங்கு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்ய சொல்லி உங்கள் பணத்தை ஏமாற்றிவிட்டார்கள். 1000 கோடி ரூபாய் அது வேற யாருக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு சென்றிருக்கிறது. இது யார், இது எப்படி நடந்தது என்பதை விசாரிக்க வேண்டாமா? तो मेरा ये सवाल है, और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த நஷ்டம், உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த காயம் நரேந்திர மோடியாலும் அமித்ஷா அவர்களாலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, நான் உங்களுக்காகத்தான் பேசுகிறேன் कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको ये गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं? விசாரணை நிச்சயமாக நடைபெற வேண்டும். இந்த தவறான செய்தியை பிரதமரும் உள்துறை மந்திரியும் ஏன் கொடுத்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, இதனால் பயனடைந்தவர்கள் யார் என்பது தெரிய வேண்டும். ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अब नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।
டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அதில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் திட்டமிட்டு முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் பங்குச்சந்தையில் 38 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாகவும் விசாரணை தேவை என்றும் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டு பல கருத்துக்களை தெரிவித்தார். அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம். நேயர்களே, செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.